Hello, welcome to my YouTube channel. As all of you are aware of that CBSE has released its sample paper few days back, which has been solved in the previous video that has been released by me. Today, exactly parallel to that CBSE sample paper, I am releasing part A of my own sample paper framed for you just for practice and just to understand how to solve the questions of part A. As you have seen in previous sample paper released by CBSE, the same and similar pattern, the same sample paper I have framed. Please try to understand. It has been explained in a very easy language. I think you will be able to understand it better to score better marks. So let us begin with the video part A of my own sample paper is being explained. Part B will be followed by this video. So let us begin with the sample paper. As you know that this question paper contains part A and part B. Each part is compulsory. Part A and part B have choices also. पार्ट ए में क्या होगा, इसमें दो सेक्शंस हैं. सेक्शन ए जिसमें आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देने हैं, ऑलमोस्ट वन वर्ड और वन लाइन क्वेश्चंस हैं, आंसर्स देने हैं आपने. इसमें सेक्शन वन में देयर आर 21 क्वेश्चंस. यू हैव टू reply for, you have to write the answer for only 15 questions, one marker. Section B has two case studies questions. Each case study has 4 case-based subparts and you have to attempt only 4 out of 5 subparts. इसका मतलब ए पार्ट में ए पार्ट में पहले सेक्शन में 1 से लेकर के 21 क्वेश्चन है, जिसमें आपको सॉल्व करने हैं 15 क्वेश्चन, 15 नंबर के. सेक्शन सेकंड में 2 केस स्टडीज क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 and 23. Each will have 5 parts. Out of 5 parts you have to attempt 4 parts only, that is 4 पार्ट अटेम्प्ट करना है, उसमें से चारों एक एक नंबर के होंगे, 4 नंबर. So that means 15 plus 4 plus 4. All right. So let us see the pattern, and B part will be discussed later. Here it is written attempt, it is part A section 1. Attempt any 15 questions from question number 1 to 21. तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको CBSE में भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था. यहाँ भी मैंने दो यहाँ पर CBSE वाले में ट्रू फॉल्स दिया गया था, यहाँ मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है. Copyright, number 1 question is copyright, trademarks and patents are dash property. Obviously these are intellectual properties because कॉपीराइट जिसके पास होता है वो जो भी अपनी बुक्स वगैरह लिखते हैं, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, फार्मूला, so all these are the intellectual property of that organization, that person who has created it. तो उसे हम लोग उसकी बौद्धिक संपदा कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. Proprietary software remains the property of its owner creator and is used by end users or organizations under predefined conditions. तो आपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देखा है जिसमें यू कैन फ्रीली डाउनलोड इट and redistribute it. Coding can also be downloaded and changed, modified without any charge. बट प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर किसी ओनर का होता है, किसी क्रिएटर का होता है, अपना सॉफ्टवेयर होता है, उसे वो सेल करता है, उसके लिए आपसे पैसे चार्ज करता है और उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड कंडीशंस होती हैं, तो दैट इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. फाइन. सो दीज आर I mean 2 parts of question number 1, half marks each.
Second question, fill in the blanks. The command used to show the x-axis title. इसमें plt.plot लिखा है, plt.xlabel, plt.title, plt.xtitle. बच्चे इसके बारे में भी सोच सकते हैं जो नहीं पढ़े हैं. और ये टाइटल पूछ रहा है तो कोई बच्चा इसके बारे में भी सोच सकता है, बट इट इज plt.xlabel years. तो यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हैं, एक्स लेवल का कोई भी हेडिंग दे सकते हैं. plt.x लेवल, plt.y लेवल. अगर y एक्सिस पर आपको कुछ लेवल लगाना है, कुछ हेडिंग लगाना, टाइटल लगाना है, तो आप plt.y लेवल, और x एक्सिस पर लगाना है हॉरिजॉन्टली तो plt.x लेवल यूज करेंगे. तो दिस इज ऑफ 1 मार्क. Write the output of the SQL command. Select truncate 49.88, 0. अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस आपको ट्रंकेट यूज करना है. ट्रंकेट फंक्शन में क्या होता है कि पॉइंट के बाद अगर 0 डेसिमल प्लेसेस हैं तो वो कोई भी डेसिमल नहीं शो करेगा, 49 शो करेगा आंसर में. इफ इट इज 1 इट विल शो 49.8. if it is comma 2 it will show 49.88. it will never round up, it will just show that particular figure only. Okay, so truncate means रिमूव होता है. यहाँ पर 49.88 कॉमा 1 लिखा हो तो इसका मतलब ये 1 डिजिट तक रख करके बाकी सब रिमूव कर देगा. और राउंड होता तो यहीं पर 49.9 हो जाता है. अब टू 0 डेसिमल प्लेस है इसलिए डेसिमल के बाद वाला सारा पोर्शन रिमूव कर देगा, 49 आपको आंसर दे देगा. So another question is, given a pandas series called series 1, the command which will display the last 5 rows is. जो कि लास्ट 5 रो शो करेगी कमांड आउट ऑफ दीज 4 कमांड्स. तो यहाँ देखें आप, प्रिंट सीरीज 1 डॉट टेल, टी कैपिटल है इसलिए ये नहीं चलेगा. पहले रॉन्ग वाले आंसर्स देख लेते हैं. प्रिंट सीरीज 1 डॉट टेल्स लिखा हुआ है, दिस विल नॉट रन. Here print series 1 dot tail in capital it is written, it will also not run. So our command is print series 1 dot tail empty bracket. So it will print bottom 5 records, okay, from the series के last 5 rows को display करेगा ये. So this is the correct answer, 1 mark. 1 to 21 all are 1 mark. Out of that you have to attempt 15 question, any 15 question that you can easily solve with confidence. ये ध्यान रखना है कि जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, वही सॉल्व करें. जिसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन है, गो फॉर ट्राइंग अदर क्वेश्चन. गिवन द फॉलोइंग सीरीज S1 एंड S2. S1 ये है आपका दिया हुआ x y z w, these are the indexes, then these are the values. S2 is here x y z w, again same indexes and values. Now write the command to find the product of the series S1 and S2. S1 और S2 को मल्टीप्लाई करना है. तो आप जानते हैं कि अगर इंडेक्सेस उसके सेम है दो सीरीज के तो वो आपस में उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे. दैट मीन्स 45, x इंडेक्स वाला 45 and 67 will be multiplied, 65 and 89 will be multiplied, 34 and 87 will be multiplied, similarly 23 and 90 will be multiplied. For that the command will be print S1 into S2. सिंपल कमांड है, या आप इसे mul फॉर मल्टीप्लाई फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. प्रिंट S1 डॉट mul S2, दैट मीन्स S1 मल्टीप्लाई S2. So this is the right answer. It is a fill in the blanks given. A dash is an accurate representation of distribution of numerical data. It is an estimate of the probability distribution of the continuous variable. It is a kind of bar graph. तो आप इसे बार ग्राफ की तरह प्लॉट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एट सर्टेन इंटरवल. आप 0 to 10 में क्या वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार. 10 to 20 क्या है, 20 to 30 क्या है. इस तरह से हम कोई इंटरवल डिसाइड करते हैं और विद इन दैट इंटरवल हाउ मेनी वैल्यूज़ आर लाइंग. फॉर दोज वैल्यूज़ बार इज प्लॉटेड. So that is a kind of histogram, उसे आप हिस्टोग्राम कहते हैं.
तो दिस इज द राइट आंसर, हिस्टोग्राम इज द राइट आंसर। यहाँ आप देख सकते हैं 192.168.1.1 इज नोन एज, आप जानते हैं ये 4 फिगर में जो आपको दिया गया है ये आईपी एड्रेस कहलाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्किंग पर जितने भी क्लाइंट्स और कंप्यूटर्स वर्क स्टेशंस होते हैं किसी भी नेटवर्क पर, उनको सभी को आईपी एड्रेस दिया जाता है सो दैट they can be identified on the network, so that switches and hubs can send the signal to appropriate computer on the network। आईपी आप पढ़े होंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी आपने पढ़ा होगा, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। दे जस्ट प्रोवाइड द कनेक्टिविटी बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। सो किसी भी नेटवर्क पर हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस 4 फिगर का होता है। चारों फिगर, all 4 figures are separated by dot symbol, and the range of these 4 figures must lie between 0 to 255। कोई भी फिगर यहाँ पर 0 से 255 से बड़ा नहीं होना चाहिए, that should be within that range out of these 4 figures। So this is what called as IP address। Now in a data frame, axis 0 represents the row elements। 0 एक्सिस रो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और एक्सिस 1 कॉलम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। What kind of networking topology is shown in this diagram? As the diagram is showing that this is the backbone, and with this backbone all other computers are connected, computers and devices are connected। At both the ends there are two terminators where signal that is being transmitted from a particular computer to a recipient is terminated at the end after receiving the message। तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग ऐसी टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी कहते हैं जिसमें केबल की लेंथ बहुत कम लगती है, बिकॉज ऑल कंप्यूटर्स ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द सेम केबल लेंथ। तो इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है दिस इज बस टोपोलॉजी। आउट ऑफ स्टार, ट्री, रिंग एंड बस, इट इज बस टोपोलॉजी। नाउ अगला क्वेश्चन 10 जो है वो डायनेमिक और स्टैटिक वेब पेज के बारे में है। A web page which displayed same kind of information whenever a user visits that particular page is known as static web page इसको कहते हैं, जिसमें जितनी भी बार आप अपना वेब पेज खोलेंगे उतनी बार same set of information is being displayed। there is no variable set of information, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। लेकिन डायनामिक वेब पेज जितनी भी बार आप ओपन करते हैं उसमें कुछ कुछ चीज़ें चेंज्ड रहती हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, या कुछ भी फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं और उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। वेरिएबल बेस्ड चीज़ें होती हैं, जैसे आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं उसमें टेम्परेचर आज 24 डिग्री सेल्सियस दिया है, लेकिन कल वो जो है हो सकता है 30 डिग्री सेल्सियस हो, 45 डिग्री सेल्सियस हो, ह्यूमिडिटी कुछ और हो। सो ऐसे केसेस में आपको डायनामिक वेब पेज बनाने पड़ते हैं। अदरवाइज always if you want to say display same and similar kind of information or similar information as and when we visit a particular web page, so that web page, such web pages are called as static web pages, and the file extension of such web pages are htm or html। तो इसका सीबीएसई सैंपल पेपर में डायनामिक वेब पेज पूछा गया था, मैंने आपसे स्टैटिक वेब पेज पूछ लिया इसमें। नाउ द सम फंक्शन इन MySQL इज एन एग्जांपल ऑफ, आपको पता होगा कि एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, ये ग्रुप फंक्शंस होते हैं, इन्हें हम मल्टी रो फंक्शंस भी कहते हैं। सम, एवीजी, मैक्स, मिन, काउंट, ये 4-5 फंक्शन जो आपके सिलेबस में हैं, all these functions are known as aggregate functions because, or multi-row functions, because they work upon multiple values obtained from multiple rows and return one aggregated value। जैसे कि आपका सम है तो सम कई वैल्यूज का सम आएगा, एक वैल्यू का सम निकालने का कोई फायदा नहीं है। मैक्स है तो यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम आउट ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज। आपका एवीजी है तो यू कैन फाइंड आउट द एवरेज ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, देन इट इज बेटर। सो ज़्यादातर ये फंक्शंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम दीज फंक्शंस वर्क्स ऑन multiple rows, that is why they are called as multi-row functions, and aggregated values are returned, that is why they are also known as aggregate functions।
तो यहाँ पर आपका आंसर ना तो मैथ फंक्शन होगा, ना डेट फंक्शन होगा, नाइदर टेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन, it will be aggregate functions. Now question number 12 is the trails and traces that are recorded with each and every online activity we perform is called as digital footprint. जब भी हम नेट पर काम कर रहे होते हैं तो हमारे पीछे कुछ पदचिन्ह छूट जाते हैं, कुछ हमारे डिटेल छूट जाते हैं, हमारा नाम छूटता है, हम कोई इंफॉर्मेशन कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारी पर्सनल भी सिस्टम पर नेटवर्क इंटरनेट पर छूटती हैं, उसे हम कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स. Now, in pandas, the function used to fill the missing values in the data frame is कौन सा फंक्शन ऐसा है जो मिसिंग वैल्यूज को फिल करने के काम आता है pandas डेटा फ्रेम में? तो ऑब्वियसली इट इज fill na फंक्शन. fill na फंक्शन से हम लोग जहां पर मिसिंग वैल्यूज हैं, na वैल्यूज हैं या nan वैल्यूज हैं, नॉट ए नंबर जिसे आप कहते हैं, उसकी जगह कुछ रिप्लेस करना है, कुछ फिल करना है, so we can use fill na function. Now here it is just try to read this question. This question will automatically throw the answer. I can allow you for audio calls, I can allow you for video calls, I should be connected with some internet connected device with microphone and speaker. Who am I? मैं कौन हूँ? Obviously it is an example of, I mean it is, these are the qualities of VoIP, voice over internet protocol. इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो VoI पर चलते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पर. जैसे आप आजकल व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, स्काइप यूज़ करते हैं जिसमें आपकी बातें भी हो सकती हैं, ऑडियो और वीडियो जो है one end to another end using internet is being transferred, so that is what it is using VoIP. आप गूगल मीट पर काम कर रहे हैं तो वहाँ भी ऑडियो वीडियो आपकी एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो रही है, so that is also called as, I mean an example of VoIP, voice over internet protocol. Sometimes its full form can also be asked. Now 15th question, from the following select two web server and two web browser. So you have to, you should be able to identify. You can go to the Google and display by writing web browser's name and web server's name. So it will display so many web browsers and web server names. Out of that you should remember important ones. So यहाँ पर Microsoft Edge लिखा है, IIS, Internet Information Server, Apple Safari, Apache Tomcat. So out of this आपको ये पता होगा Apple Safari जो है एक वेब ब्राउज़र है Apple का. देन माइक्रोसॉफ्ट एज का ये लेटेस्ट इस समय वेब ब्राउज़र आ रहा है इन प्लेस ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर. Microsoft has updated its web browser and named it Microsoft Edge. तो ये दोनों आपके वेब ब्राउज़र्स हैं, IIS और Apache Tomcat, ये जो है वेब सर्वर हैं दोनों. Now, while sending the email to number of users, I want that a particular recipient should be able to see only sender's email ID, but not other recipients. Where should I write the email of all the recipients, whether in CC और BCC? आपने ईमेल भेजा होगा, ईमेल भेजते समय आपने देखा होगा एक तो टू होता है जिसको भेजना होता है, उसके बाद नीचे CC और BCC दो ऑप्शंस और होते हैं जिसमें वी कैन राइट नंबर ऑफ ईमेल एड्रेसेस. तो CC में और BCC में ये पूछ रहा है कि कई बार होता है कि मैं आई वांट टू सेंड ईमेल टू नंबर ऑफ यूजर्स, 100 यूजर्स को, 1000 यूजर्स को आपको भेजना है, तो यू विल बी राइटिंग ईमेल एड्रेसेस. आपने मेन जो है टू में लिख दिया, बाकी को आप CC या BCC में किस में पेस्ट करेंगे? तो CC में पेस्ट करने पर बाकी ईमेल एड्रेसेस क्या होता है कि जो रेसिपेंट होगा उसे अपना ईमेल एड्रेस और सेंडर का ईमेल एड्रेस तो दिखेगा ही, साथ साथ और उन सभी रेसिपेंट्स का ईमेल एड्रेस दिखेगा जिनको और ईमेल भेजी गई है. तो वो सीक्रेसी को डिस्क्लोज करने वाली बात है. कुछ लोगों का ईमेल एड्रेस अनवांटेडली उसके पास चला जाएगा.
ऐसे केसेस में वी शुड राइट द ईमेल एड्रेसेस ऑफ द रेसिपेंट इन बीसीसी, सो दैट सेंडर का और रिसीवर का, जो रिसीवर है, रिसिपेंट है, दैट विल बी, he or she will be able to see the email address of the sender only, not of others, कि किसको किसको और भेजा गया, और अपना उसको दिखाई पड़ेगा। तो इससे हमारी जो और रिसिपेंट्स हैं उनका ईमेल आईडी डिस्क्लोज नहीं होगा। So for this security point of view, you can use BCC, where we can write email addresses of number of users to whom you want to send the emails secretly. Now, write one benefit of e-waste recycling. E-waste आप जानते हैं तरह तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं हमारे, कंप्यूटर से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या टीवी, रेडियो, फ्रीज एंड ऑल। तो इनसे जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकलता है उसे हम रिसाइकिल करने के लिए क्या एक बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है उसको रिसाइकलिंग करने का। रिसाइकलिंग ई वेस्ट कैन कीप अ रेंज ऑफ हार्मफुल मटेरियल आउट ऑफ द इन्वायरमेंट, जिससे उसमें जो लेड वगैरह होता है, जो बैटरी वगैरह होती है, इस तरह से हार्मफुल बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, हार्मफुल आइटम्स होते हैं, वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें। दैट इज वाई वी शुड recycle our e-waste material. Now, 18th question is, the dash command can be used to make changes in the structure of the table in SQL. Which command will be used to make the changes in the structure of the table? Structure you know, जो आपका describe करने पर आता है। Structure involves column name, data type, its size, constraint if any applicable on that column. तो वो क्या कहलाता है, आपका स्ट्रक्चर कहलाता है। तो स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफिकेशन करना है तो ऑब्वियसली हम लोग ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करते हैं। आप कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉलम डिलीट कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको ऑल्टर टेबल में मिलती हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑल्टर टेबल कमांड। Now, dash network device broadcast data packet to all its ports on the network. नेटवर्क पर कौन सी ऐसी डिवाइस है जो डेटा पैकेट जब ट्रांसमिट होते हैं उसके थ्रू, तो वो अपने सभी पोर्ट्स पर, उस डिवाइस में मान लो 10-16 पोर्ट हैं तो 16 पोर्ट्स पर सेम डेटा पैकेट को कॉपी कर देती है, और थ्रू विच देयर आर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड। दैट मीन्स दैट डेटा पैकेट is transferred to all the computers whether it has to receive or not. Then what happens? The recipient computer on the network receives the data packet and rest of the computers reject it. तो हब एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, जो डेटा पैकेट उसको इन होता है, आता है सिस्टम से, ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर से, उसको अपने सभी पोर्ट्स पर, सभी कंप्यूटर्स पर सेंड करता है। ठीक है, और जबकि स्विच क्या करता है, स्विच विल सेंड दैट डेटा पैकेट टू दैट पार्टिकुलर कंप्यूटर which has to receive it only. This is the difference between hub and switch. That is why switch is called as intelligent hub, because it identifies to whom the data packet has to be sent on the network. तो इसका आंसर हमारा हब है, ये ब्रॉडकास्ट करता है। Write one method to prevent us from spam emails. स्पैम ईमेल से बचने के लिए क्या करें, उसके लिए आप डाउनलोड करें स्पैम फिल्टरिंग टूल्स, जिससे आपकी स्पैम ईमेल्स फिल्टर हो जाएं, और अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो होना ही चाहिए। दीज आर द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। इस तरह से आपका सेक्शन फर्स्ट पार्ट ए का खत्म हुआ। 21 क्वेश्चंस हुए। इन 21 क्वेश्चंस में सभी एक एक नंबर के हैं, इनमें से आपको 15 क्वेश्चन करने हैं और बहुत आसान है। इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर दीज 15 मार्क्स आउट ऑफ दिस 21 क्वेश्चंस। नाउ सेक्शन 2 जो है ये केस स्टडी पर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 22 और 23। ये आप देखिए, इसका ये केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, 23, 22 and 23. 22 question is belonging to data frame and question number 23 belongs to MySQL. तो हम लोग इसका
पार्ट ए का ये 2 क्वेश्चन और करेंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में जो केस स्टडी वाला डेटा फ्रेम बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें 5 पार्ट है, इसमें से आपको 4 पार्ट करने हैं, हर पार्ट एक एक नंबर का है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 बिलोंग्स टू एसक्यूएल, उसमें से भी आपको 5 पार्ट्स में से 4 पार्ट करने हैं। तो स्ट्रक्चर आपके माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह से होना चाहिए सैंपल पेपर का। दिससे यू शुड नॉट जस्ट फील कि मैं इससे बिल्कुल पता नहीं है क्या स्ट्रक्चर है पेपर का, क्या है नहीं। तो पहले से आप कई सैंपल पेपर किए रहेंगे, उसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए, so that you should not be unaware. Now consider the following data frame DF and answer any 4 questions from first to 5. So first to 5 there are 5 questions given, out of that you have to attempt only 4 parts. तो यहाँ देखें डेटा फ्रेम स्टूडेंट आईडी, नॉट स्टूडेंट आईडी, इट इज सेल्समैन आईडी, सेल्समैन नेम, क्वार्टर 1 में क्या सेल किया, क्वार्टर 2 में क्या सेल किया, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 की क्या करस्पॉन्डिंग सेल्स हैं सेल्समैन वाइज, प्रीति सिंह, मनु एंड तरुण गोयल एंड ऑल दीज आर द सेल्समैन who have sold some item for this much amount in 4 quarters. Now write down the command that will give the following output. ऐसी कमांड लिखिए जिससे कि ये आउटपुट आपको दिखाई पड़े। तो क्या कमांड लिखेंगे, इसमें क्या आ रहा है, SID में आ रहा है 101, SM नेम में आ रहा है कपिल, क्वार्टर 1 में आ रहा है 15500, व्हाट इज 15500, सबसे मिनिमम है ये, क्वार्टर 2 में 15690, क्वार्टर 3 में 18760, द लोवेस्ट वन इज कमिंग, SID सबसे छोटा आ रहा है, SM नेम सेल्समैन नेम भी सबसे छोटा आ रहा है, जो K से शुरू हुआ वो सबसे छोटा है इसमें, रेस्ट आर R एंड T। तो ऑब्वियसली हर कॉलम की मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है ये। ओके, सो वी कैन राइट DF डॉट मिन, और मिन में भी आपको क्या है कि हर रो की वैल्यू डिस्प्ले करनी है इसमें, रो वाइज दिस हर कॉलम की जो है मिनिमम वैल्यू आपको डिस्प्ले करनी है हर कॉलम में। तो यहाँ पर कॉलम आपका जो है वो 1 वैसे रिप्रेजेंट करता है, कॉलम एलिमेंट्स को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉलम एलिमेंट्स मिन और मैक्स फंक्शन, ये जो एग्रीगेट फंक्शंस आप यूज करेंगे डेटा फ्रेम में, वहां पर उसे एक्सिस 0 शो करेंगे। तो इस तरह से इसका बी भी आंसर सही है और सी भी सही है, क्योंकि यहाँ पर डिफ डॉट मिन, यहाँ पर 0 एक्सिस लिख दीजिए, या df डॉट मिन विद इन ब्रैकेट एक्सिस इक्वल टू 0 लिख दीजिए। तो ये दोनों आपका सही है। अगर आप एक्सिस इक्वल टू 1 लिखते हैं तो हॉरिजॉन्टली यहाँ से लेकर के या हॉरिजॉन्टली इसमें कौन सा मिनिमम है वो फाइंड करेगा। ओके, सो इट इज फाइंडिंग आउट like this vertically for each column, it will find out the minimum value. Now the manager of the company needs to know the sales of salesman ID 103 and 104, help him to identify the correct set of statements from the given options. आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से आपको पता करना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इस पर हाईलाइट किया गया है, ये ऑप्शन आपका सही है। बाकी देख लें, DF SID इज इक्वल टू 103, यहाँ पर और नहीं यूज होता है इसलिए इसको रिजेक्ट करना है, एंड नहीं यूज होता है इसलिए इसको यहाँ रिजेक्ट कर दीजिए, और इक्वल टू 103 एंड इक्वल टू 104 सेल्समैन आईडी दोनों एक साथ एट ए टाइम, ये भी कंडीशन ट्रू हो और ये भी कंडीशन ट्रू हो, ये पॉसिबल नहीं है, एंड हो नहीं सकता है। ऑब्वियसली ये और ऑपरेटर होगा, और यहाँ पर आप लिख रहे हैं क्या, DF डॉट SID इक्वल टू 103 और DF डॉट SID इक्वल टू 104। यहाँ से यहाँ तक आपका ये एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा इधर ट्रू और फॉल्स। तो जो रो इसको सेटिस्फाई करेगी उसके लिए ये ट्रू देगा, और उसी के लिए आपका डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से ये आपका हुआ। अच्छा, इसको अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो आई कैन शो यू दिस थिंग प्रैक्टिकली ऑल्सो।
यहाँ मैं डेस्कटॉप में आपको ले चलता हूँ। डेस्कटॉप में मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। अभी P1 देखते हैं। आई थिंक दिस इज द प्रोग्राम। Yes, this is the program. You can see it. If I run it, what will happen? ये आपका मिनिमम डिस्प्ले कर रहा है। आप कोड विंडो देख सकते हैं यहाँ पर। कोडिंग में df.min एक्सिस इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको सिंपली 0 लिख देता हूँ, then also you will get the same result. You will get the same result. This one. This is the result. Okay. Now. अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाली लाइन अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, डीएफ तो हमारा बन गया है। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ इसमें ले जा करके, देन व्हाट हैपन्स, हमारा ये डीएफ है और डीएफ में मैंने ये कॉपी पेस्ट किया, एंटर। सो यू कैन सी वी आर गेटिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ 103 सेल्समैन आईडी 104। ये दोनों रिकॉर्ड्स मेरे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू डिस्प्ले द एरर। फाइन। नाउ another question, which is which of the following statements will give the average sale of each quarter of the data frame? हर क्वार्टर की डेटा फ्रेम की एवरेज सेल निकालनी है। इसके लिए आप लिखेंगे क्या, df.loc all rows बट कॉलम्स आर Q1, Q2, Q3 एंड Q4 डॉट मीन लगा दिया आपने, तो ये न्यूमेरिक वैल्यूज का मीन निकालेगा फॉर ऑल रोज। मतलब सभी रोज में से वो Q1 का मिनिमम मीन निकाल लेगा, Q2 का, Q3 और Q4 का मीन निकाल लेगा। लेट अस सी व्हाट हैपन्स। इसको आप देखें अगर पेस्ट करके, व्हाट हैपन्स इन पाइथन, वी आर पेस्टिंग इट। से Q1 का ये एवरेज सेल आ गया, मीन Q2 का एवरेज आ गया, Q3, Q4 का। दैट मीन्स ऑल वैल्यूज आर एडेड एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। 6 वैल्यूज हैं, इन सभी को Q1 को उसने ऐड किया और उसको 6 से डिवाइड कर दिया। सो यू आर गेटिंग दिस मच। सिमिलरली फॉर ऑल क्वार्टर्स। नाउ अनदर here, which of the following commands will display the data type of each column of data frame? अब df डॉट टाइप बच्चा सोचेगा या टाइप ऑफ df, df डॉट टाइप सोच सकता है क्योंकि पिछले में चैप्टर्स में जो डेटा टाइप पढ़ा है वो टाइप के नाम से पढ़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर जो है df डॉट डी टाइप भी लिख सकता है बच्चा, जबकि here we have to write the df of d types। यहाँ पर s भी लगाना है आपने, तब आपको डेटा फ्रेम का सभी वैल्यूज का डेटा टाइप आप डिस्प्ले कर सकते हैं। लेट अस पेस्ट इट एंड रन इट। आप देखें यहाँ पर SID का int 64 है, SM नेम का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग को ये ऑब्जेक्ट देता है, एंड ऑल दीज आर इंटीजर 64। सो पैंडास में ये न्यूमेरिक डेटा टाइप्स देता है सारे, numpy से रिलेटेड डेटा टाइप्स हैं सारे, आपको पता होना चाहिए। यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th। Here, manager wants to add a new column, total sales, by finding the sum of sales done in Q1, Q2, Q3 and Q4. Help him choose the command to do so. अब आपके पास ये इन सभी को ऐड करना है और ऐड करके टोटल निकालना है। सो df ऑफ टोटल, तो df डॉट Q1, df डॉट Q2, df डॉट Q3, df डॉट Q4 ऐसा भी लिख सकते हैं आप, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं df ऑफ टोटल इक्वल टू, इस तरह के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं हम, और df डॉट टोटल इक्वल टू df डॉट loc कॉमा, जैसे आप पहले कर रहे थे अभी, वहां पर आपने कौन सा फंक्शन लगाया था, मीन। यहाँ भी आप क्या लगा सकते हैं, सम फंक्शन लगा सकते हैं एक्सिस इक्वल टू 1 पर। ओके, तो एक्सिस इक्वल टू 1 यहाँ पर हॉरिजॉन्टली लेगा, एक्सिस इक्वल टू 0 क्या ले रहा था, वहाँ वर्टिकली कॉलम वाइज ले रहा था। तो यहाँ थोड़ा उल्टा है, जो सम मैक्स मिन लगाने हैं, जहाँ पर एक्सिस इक्वल टू 1 लिखेंगे
वो क्या लेगा, आपका हॉरिजॉन्टल लेगा, और एक्सिस इक्वल टू 0 लिखने पर वो वर्टिकल लेगा, जबकि ग्राफ के केस में उल्टा होता है, एक्सिस 0 मीन्स हॉरिजॉन्टल और एक्सिस 1 मीन्स वर्टिकल। तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा, तो ये तीनों कमांड्स चलेंगे, तीनों कमांड्स करेक्ट हैं, इसलिए इसका मैं लिख सकता हूँ ऑल ऑफ दी एबव। ये तीनों ऑप्शन सही हैं आपके। आप इसे यूज करना चाहते हैं, यूज करके देख सकते हैं। यहाँ मैंने इसको कॉपी किया, देन आई एम जस्ट पेस्टिंग इट हियर, पेस्टेड, एंड नाउ df इज कैलकुलेटेड विद वन मोर कॉलम टोटल। यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक नया कॉलम टोटल भी इसमें ऐड हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, और डिलीट करने के बाद दूसरी कमांड पेस्ट करके देख सकते हैं। ऑल दोज 3 कमांड्स विल रन एग्जैक्टली विदाउट एनी प्रॉब्लम। तीनों कमांड्स ठीक हैं, इसे आप गो थ्रू हो जाइए, 3 तरीके से इसको कैसे लिखा जा सकता है। नाउ 23rd question is also based on case studies. It is a table teacher given. Out of this table we have to write the SQL queries. देखें क्या क्या है। We need not to write the SQL queries, rather SQL queries are written with number of options. Out of that we have to select the correct one for the statement being asked. यहाँ पर कह रहा है state the command that will give the output. राघव, जेम्स, बिनोय। देखिए यहाँ पर राघव, जेम्स एंड बिनोय की क्या क्वालिटी है। राघव फिजिक्स मेल 523,000, बिनोय अकाउंट्स फीमेल एंड 12,30,000, right? Thereafter Binoy accounts female 12,30,000. So what is the quality? इनकी क्या आप देख रहे हैं क्वालिटी। ये यहाँ पर कमांड क्या लिख रहा है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम द टीचर वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड लेस देन इक्वल टू 30,000। तो यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर गलती ये है कि ये कंडीशन तो पूरी लिखी है और ये कंडीशन आधी लिखी है। यहाँ भी आपको पूरी कंडीशन लिखनी पड़ेगी, दैट इज सैलरी लेस देन इक्वल टू 30,000, अदरवाइज ये कमांड गलत है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर, ये चाहता है कि 20,000 और 30,000 के बीच में जो सैलरी वाले एम्प्लॉयज हैं, जो भी है ये टीचर्स हैं, उनके नाम आए। देखिए आप राघव 23,000, देन नेक्स्ट नेम इज जेम्स, जेम 21,700, देयर आफ्टर बिनोय 30,000। तो ये 20,000 और 30,000 के बीच जिसकी सैलरी है इंक्लूडिंग बोथ द एंड्स, they are their names to be displayed. Select name from teacher where salary is between, यहाँ पर एक तो is आपका गलत लगा हुआ है, between के बाद यहाँ and लगता है, यहाँ and नहीं है, that is why this command is wrong. Third command is select name from teacher where salary between 20,000 and 30,000, बिल्कुल सही कमांड है ये, इसमें between ऑपरेटर के साथ 20,000 to 30,000 के बीच में जिसकी सैलरी है उसका नेम डिस्प्ले हो जाएगा। इसी चीज को लिखा जा सकता है सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 30,000। आपने पहली कमांड जो देखी थी, यहाँ मैंने बताया था, यहाँ सैलरी लेस देन इक्वल टू 30,000 होना चाहिए, एंड द सेम हैज बीन रिटन हियर, दैट इज व्हाई दिस कमांड इज आल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। Here B part, both third and fourth are correct parts. Now what will be the output of the following command? इसमें इस कमांड का आउटपुट बताना है आपने। Select name DPT sex experience from teacher where gender equal to F, order by salary DESC। डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में नेम, डिपार्टमेंट, सेक्स, एक्सपीरियंस लिखना है सभी फीमेल्स का। तो हमारे पास ये फीमेल्स हैं सभी, और जानवी का क्या लिख, नेम, डिपार्टमेंट, सेक्स एंड एक्सपीरियंस, नेम, डिपार्टमेंट, सेक्स एंड एक्सपीरियंस, बट कंडीशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑर्डर बाय इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर बाय इज जस्ट टू सॉर्ट आउट, I mean the data will be arranged on the basis of salary column in descending order। तो आप सैलरी कॉलम देखें इनके,
जानवी बिनोय और जेम्स नूपुर के। तो जानवी की सैलरी, जानवी जो है कहाँ है, एफ है, ये हाईएस्ट है। बिनोय देखें ये 30,000 है। उसके बाद है जेम्स 21,700 एंड नूपुर आई थिंक दिस इज 12,000। तो ये चारों फीमेल्स हैं। इनकी सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले आपके 42,000 वाला हो गया, देन 30,000 वाला, देन 21,700, देन 12,000। यू कैन सी देयर नेम्स, जानवी, बिनोय, जेम्स एंड नूपुर। सिंस सैलरी इज नॉट विजिबल हेयर, दैट इज व्हाई इट इज ए प्रॉब्लम। अगर यहाँ पर सैलरी भी सेलेक्ट किया गया होता तो वो उसी ऑर्डर में आ रहा होता, 42,000, 30,000, 21,700, देन 12,000। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपको देख लेना इसमें, और करेक्ट है नहीं, इसमें उसी चीज को रैंडम ऑर्डर में लिखा हुआ है। Bhumi Gupta has given the following commands to obtain the average salary of each department. हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी फाइंड करने के लिए भूमि गुप्ता हैज रिटन दिस कमांड, सेलेक्ट एवीजी सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। एक तो यहाँ वेयर नहीं लगेगा, वेयर जो है नॉर्मल कमांड्स में कंडीशन फिल्टरिंग के लिए लगा सकते हैं, लेकिन ग्रुप बाय, वेयर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट जरूरत नहीं यहाँ थी, या तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट लिखो तो वेयर हटाना पड़ेगा आपको। ओके, सो यहाँ देखें, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वेयर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट इज इनकरेक्ट, सेम कमेंट यहाँ लिखी हुई है, यहाँ एवीजी की बजाय एवरेज लिख रहा है, ये भी गलत है। सेलेक्ट डीईपीटी एवरेज सैलरी फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय सैलरी, इट इज मेकिंग द ग्रुप ऑन सैलरी कॉलम, जबकि क्या कह रहा है, ईच डिपार्टमेंट, द ग्रुप हैज टू बी मेड फॉर ऑन डिपार्टमेंट कॉलम, यानी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देखते हैं थर्ड वन, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली उस डिपार्टमेंट को डिस्प्ले किया जिस पर ग्रुप बन रहा है, जिससे ग्रुप का पता चल सके कि किस डिपार्टमेंट की कौन सी एवरेज सैलरी आ रही है। डिपार्टमेंट कॉमा एवरेज सैलरी फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट इज द करेक्ट आंसर। डिपार्टमेंट पर आपने ग्रुपिंग किया है और हर डिपार्टमेंट सामने होगा, लाइक कंप्यूटर उसकी एवरेज सैलरी, अकाउंट्स उसकी एवरेज सैलरी, फिजिक्स उसकी एवरेज सैलरी एंड सो ऑन। सो दिस इज करेक्ट कमांड। और तीसरी देख लेते हैं इसमें क्या गलती है, चौथी कमांड में, सेलेक्ट डिपार्टमेंट एवीजी सैलरी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट फ्रॉम टीचर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्रॉम क्लॉज बाद में आ रहा है, जबकि फ्रॉम पहले आना चाहिए, ग्रुप बाय बाद में आना चाहिए। यहाँ पर इस करेक्ट कमांड में आप देख सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। फोर्थ क्वेश्चन यू कैन सी ऑफ दिस पार्ट, 23rd क्वेश्चन का चौथा पार्ट देखें, स्टेट द कमांड टू डिस्प्ले द टोटल सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट हु आर इन कंप्यूटर एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। यानी कि हर डिपार्टमेंट का लिखा, ईच डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी, टोटल का मतलब सम फंक्शन, सम फंक्शन इज एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन लग रहा है, ईच डिपार्टमेंट लिखा है, ग्रुप बाय लगेगा, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शंस के साथ ईच लिखा हो किसी कॉलम पर, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी जॉब, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी क्लास, तो उसमें जो है आपका ग्रुप बाय लगने का मैक्सिमम चांस होता है। और ये भी देख लें कि क्या उसमें एग्रीगेट वैल्यूज यूज की जा रही हैं, तो टोटल सैलरी, एवरेज सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी, काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो वहां पर ग्रुप बाई के बारे में आप सोच सकते हैं। और आउट ऑफ दोज ग्रुप्स ओनली फॉर कंप्यूटर एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो इसका मतलब ग्रुप बाई के साथ हैविंग भी लगेगा। सो यू कैन सी द कमांड सेलेक्ट डिपार्टमेंट। एक चीज और ध्यान रखना है कि जिस पर ग्रुप बना रहे हैं उसको एज ए फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट ही कर दें अपनी कमांड्स में, जिससे जो आपका ग्रुप बन रहा है वो किस कॉलम पर, किस ग्रुप के बारे में वो एग्रीगेट वैल्यूज हैं। सम सैलरी है भाई, लेकिन किस डिपार्टमेंट की है वो पता ही नहीं चलेगा until unless you select the department। अगर उसके सामने लिखा आ रहा है अकाउंट्स, उसकी टोटल सैलरी 1,50,000, तब तो पता चलेगा। इफ इट इज सिंपली रिटन 1,50,000, इट इज अननोन कि वो किस डिपार्टमेंट का है, अकाउंट्स की है 1,50,000, या जो है फिजिक्स की है, या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट की है, अननोन। देयरफॉर सेलेक्ट के साथ जब भी ऐसी कमांड पूछी जाए तो आप उस कॉलम को यहां जरूर लिख दें जिस पर आप ग्रुप बना रहे हैं।
So select department sum of salary from teacher where department equal to computer or accounts group by department। ये बिल्कुल गलत है, फ्रॉम टीचर वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू कंप्यूटर, और यहाँ पर ये सिंपल कंडीशन है ही नहीं है, और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू अकाउंट्स होना चाहिए। देन यू कैन राइट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, तब तो ये काम कर जाता, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट कमांड, सेलेक्ट डिपार्टमेंट सम सैलरी फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट वेयर। अब ग्रुप बाय के बाद वेयर नहीं आता है, रिमेंबर वेयर आना है तो पहले आएगा बिफोर ग्रुप बाय, फ्रॉम के बाद और बिफोर ग्रुप बाय, अदरवाइज रॉन्ग, तो इसकी वजह से ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट डिपार्टमेंट सम सैलरी फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, देन अगर ग्रुप लग गया तो आप हैविंग लगा दीजिए उस पर, और अदरवाइज ग्रुप बाय से पहले फ्रॉम के बाद वेयर से भी फिल्टर किया जा सकता है, जो फिल्टर होगा डाटा उस पर ग्रुप बन सकता है। But once group by is implemented on particular column, so having will be implemented on that column on which the group is being made। अगर ग्रुप बाय जो है डिपार्टमेंट पर बनाया है तो हैविंग आप डिपार्टमेंट पर लगा सकते हैं, हैविंग आप किसी भी एग्रीगेट फंक्शन पर लगा सकते हैं, सम मैक्स मिन काउंट एवीजी पर लगा सकते हैं हैविंग, या जिस पर ग्रुप बना है डिपार्टमेंट ग्रुप बाय जिस पर बना हुआ है उस पर लगा सकते हो हैविंग। इसके अलावा किसी और कॉलम पर हैविंग नहीं लगेगा। ओके, जो कि ये करेक्शन मैंने बोर्ड वाले सैंपल पेपर में कर दिया था, आप उसको ध्यान से देख लेना कि हैविंग एक अलग कॉलम पर लगाया गया है वहां पर, जो कि एक्सेप्टेड नहीं है और वो गलत है कंप्लीटली। तो एक शर्त में जो मैं बता रहा हूं उसे याद रखिए कि जिस कॉलम पर आप ग्रुप बाय बना रहे हैं लगा रहे हैं, हैविंग उसी कॉलम पर लगा सकते हैं, या हैविंग किसी भी एग्रीगेट फंक्शंस के इस्तेमाल पर लगा सकते हैं। सम सैलरी, एवीजी सैलरी, मैक्स सैलरी, मिन सैलरी, इज ग्रेटर देन दिस, इज लेस देन दिस, हैविंग में डाल सकते हो कंडीशन बना के। हैविंग काउंट स्टार इज इक्वल टू 5, काउंट पर भी लगा सकते हो। हैविंग सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 1,50,000, like that, but you cannot implement having on से इस टेबल में अगर हम देखें तो आप इस पर नहीं लगा सकते हैं हैविंग, क्या नाम, जिस पर ग्रुप नहीं बना, हैविंग नेम इज इक्वल टू दिस, हैविंग सेक्स इक्वल टू एम और एफ। अगर सेक्स पर ग्रुप बाय लगा है तो हैविंग सेक्स इक्वल टू एम लिख सकते हो। ओके, हैविंग सेक्स तब लिखेंगे जब इस पर ग्रुप बनाओ, इस पर रिपीटेड वैल्यूज हो, देन ओनली, रिमेंबर। इसके लिए आप हमारी जो है MySQL रिवीजन टूर की वीडियो देखिए, उसमें आपको सारे एग्रीगेट फंक्शन एक्सप्लेन किए गए हैं। सो देयर दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। ग्रुप बाय और हैविंग और एग्रीगेट फंक्शंस पर वीडियो इज अवेलेबल फॉर क्लास 12th, यू कैन सी इट। फिफ्थ देखिए, हेल्प अमन टू राइट द कमांड टू डिस्प्ले नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स टीचर्स सेपरेटली। नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर, तो नंबर ऑफ मेल निकालने के लिए, काउंटिंग करने के लिए काउंट फंक्शन का यूज होगा, और काउंट फंक्शन जब मैं लगाऊंगा मेल और फीमेल का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको सेपरेटली, तब काउंट काम करेगा उस पर। इसका मतलब ग्रुप बाय भी लगेगा किस पर, सेक्स पर लगेगा, जिसमें मेल और फीमेल का वो ऑटोमेटिकली दो ग्रुप बना देगा। बाय काउंटिंग नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स, काउंट स्टार इज एनफ फॉर दैट। सो कमांड्स क्या है, सेलेक्ट सेक्स काउंट स्टार फ्रॉम टीचर, इसमें ग्रुप बाय नहीं लगाया गया इसलिए ये गलत होगा। ये क्या करेगा, कोई भी एक सेक्स लास्ट उठा लेगा और उस पर कितने हैं टोटल नंबर ऑफ रोज दे देगा उस टेबल का, दैट इज नॉट आई मीन करेक्ट। सेलेक्ट सेक्स कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर सेक्स इक्वल टू एफ एंड सेक्स इक्वल टू एम, तो यहां भी आपका ये काम नहीं करेगा क्योंकि एफ और एम दोनों सेक्स किसी रो में है ही नहीं एट ए टाइम टुगेदर, दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग। सेलेक्ट ए नल सेट क्रिएट करेगा, सेलेक्ट सेक्स काउंट स्टार फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय सेक्स, ठीक है यहां तक, लेकिन यहां वेयर लगा दिया ग्रुप बाय के बाद तो गलत हो गया। ठीक है,
then last command is left select sex comma count star from teacher group by sex. It is simple, दो ग्रुप बनेंगे, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए, सेक्स पर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं। मेल देन मान लीजिए 5 है, फीमेल मान लीजिए 10 है, तो मेल 5 फीमेल 10, दो ग्रुप बन गया इसका। अगर आप यहाँ सेक्स नहीं सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, 5 और 10 आएगा, पता नहीं चलेगा 5 मेल का है 10 फीमेल का है कि 10 मेल का है 5 फीमेल का है, इट विल बी अननोन। दैट इज वाई आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन कि द कॉलम ऑन विच यू आर मेकिंग द ग्रुप मस्ट बी सेलेक्टेड इन द सेलेक्ट लिस्ट फॉर डिस्प्ले, तभी आपको उसके साथ करस्पॉन्डिंग ग्रुप्स के बारे में पता चलेगा। वीडियो लंबी हो गई है इसलिए मैं पार्ट बी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ऑल्दो पार्ट बी एंड इट्स सॉल्यूशन इज आल्सो रेडी फॉर दिस पेपर, but you have to wait for some time to get the part B of this sample paper made by me, and similar sample papers you will keep on be getting just for practice. So thank you very much, thank you for watching the video, thank you.